dedication, and teamwork of everyone involved. On behalf of the entire school community, I warmly welcome our chief guest, Mr. C.L. Thakur, whose presence today encourages and inspires us all. Sir, your amazing achievements in the field of education and in the social field make you a true role model for our students. Thank you for being here with us today. To our parents, we sincerely thank you for your constant support and trust in our school. Your belief in us helps us guide your children towards success and growth, and we are grateful for the role you play in their education. A special welcome to our respected teachers whose hard work, care and guidance help shape our students' talents and characters. This day is as much about celebrating your dedication as it is about celebrating the achievements of the students. To our dear students, today is your day. It is a day to show off your talents, creativity, and the result of your hard work throughout the year. Remember, every performance, every effort is a step toward learning, improvement, and success. We are so proud of each one of you. The annual function is not just a celebration, it is a chance for creativity to shine and for talent to be recognized. Today, you will enjoy a variety of performance from dances and songs to plays and speeches, all carefully prepared by our students with the guidance of our teacher. Let's make this event memorable by celebrating the spirit of learning and togetherness. Once again, I welcome you all to this special occasion. Let's sit back, enjoy and cheer for the wonderful performance our students have worked hard to prepare. Your applause and support mean everything to them. Thank you for being here and making this day even more special with your presence. Let the celebration begin. At the end, I would like to thank our school headmaster for giving me such a big duty to welcome this beautiful gathering. Director श्रीमती कुसुम बरियान जी आज के मुख्य अतिथि श्री सीएल ठाकुर जी को बैज लगाकर सम्मानित करें। सर सामने मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती कुसुम बरियान जी आज के श्रीमती कुसुम बरियान जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो आज के मुख्य अतिथि श्री सियाल ठाकुर जी को बैच लगाकर सम्मानित करें। सभी जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। सर सामने जोरदार तालियां। ढूंढ के लाया के मुख्य अध्यापक श्री मदन लाल जी को बैच पहनाकर सम्मानित करें। श्री सामने देखना सर सामने सामने नेक्स्ट
सामने देखिए। सम्मानित करें श्रीमती by giving him a bat. Mrs. Kusubaram, come on this stage. सामने देखो। वह खजाना क्या जिसकी चाबी ना हो, वह खजाना क्या जिसकी। भाई सामने मिसेज नगीता सूरी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सामने देखो। मैं नेक्स्ट श्रीमती बीना देवी जी से निवेदन करना। कब पवन कुमार को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। श्री पवन कुमार जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और डिसिप्लिन मैनेजमेंट के सदस्य श्रीमती ज्योति जी को श्रीमती बीना देवी बैच लगाकर सम्मानित करें। प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो स्टेज पर आए और हमारे स्कूल के हेडमास्टर श्री मदन लाल। नेक्स्ट मैं निशा मैम हमारे एसएमओ जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो श्रीमती बबली देवी जी का स्वागत करें। सामने मैं श्री सीएल प्लीज कम ऑन द स्टेज। जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। श्री देशराज जी कृपया करके। मैं श्री नवीन जी, मैं श्री सीएल ठाकुर जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो थोड़ा इस साइड करना है। सामने श्री चंद्रेश जी को बैच लगाकर सम्मानित करें। मैं श्री सीएल ठाकुर जी से पुनः प्रार्थना करना चाहूंगा लगाकर सम्मानित करें। श्री कुलदीप जी, मैं श्री सीएल ठाकुर जी से पुनः प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो श्री संजय जी को प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो श्रीमती मीनू देवी जी को बैच लगाकर बीना देवी जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो श्रीमती कमलो देवी जी को बैच लगाकर सम्मानित करे। आ रही है माता सरस्वती को ज्ञान की देवी, विद्या की देवी माना जाता है। पुराणों एवं शास्त्रों में माता सरस्वती को सत्व गुणों का प्रतीक माना गया है। माता सरस्वती को संगीत एवं बुद्धि की देवी माना जाता है। पुराणों में माता सरस्वती को सावित्री, गायत्री, अंबिका, लक्ष्मी, सती इत्यादि नामों से संबोधित किया गया है। तो जोरदार तालियों से सरस्वती वंदना के लिए हमारे नन्हे मुन्ने कलाकारों का स्वागत करें।
के लिए। So, taking the program forward, मैं नर्सरी LKG UKG के बच्चे
जो पहाड़ी नाटी हमें अपनी संस्कृति रीति रिवाजों से जोड़कर रखती है। चाहे जोरदार तालियां हो जाए हमारे बच्चों के लिए, जिनकी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं कार्यक्रम में हिमाचल के लोग हिमाचली कल्चर के साथ साथ पंजाबी कल्चर लगते हैं, खासकर शादियों में तो बच्चों के साथ साथ बड़े भी खुशी से नाचने लगते हैं। तो तालियों के साथ स्वागत करें भूमिका एंड हिताक्षी, जो कि पंजाबी सॉन्ग लौंग लाची पर डांस करेंगी। भूमिका वे तो लौंग वे मैं लाची, तेरे पीछे आ गवाची, तेरे पीछे आ गवाची।
Now next, I would like to call रेंडी सोने की घड़वाई सोने की घड़वाई चौंदड़ी जयपुर ते मंगवाई रेंडी सोने की घड़वाई गले में कंठ गिर के ने टोकरी चांदी की आठाई रूप कति निखरा पाटला जिक्र बहु की मान की खाली दामन नीचे पैरी जुती बड़गी देखो चीज कसुती यगज बड़ पानी ने चली 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 नो लखे ने फैल करे तेरे माथे आला टिक्का आँखियाँ के काजल के आगे सारा सौदा फिक्का नो लखे ने फैल करे तेरे माथे आला टिक्का आँखियाँ के काजल के आगे सारा सौदा फिक्का का टुकड़ा बरन का मुखड़ा का सुत्ती गला पहला ली दामन नीचे पैरी जुती बड़गी देखो चीज कसुती यगज बड़ पानी ने चली 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 पायल भी प्यारी लागे और खुड़का भी अनमोल कटी झुमके भी दिखे से महंगे पत्या कोन्या तोल कटी पायल भी प्यारी लागे और खुड़का भी अनमोल कटी झुमके भी दिखे से महंगे पत्या कोन्या तोल कटी तो हंसी करे बदमाशी नाक में नकलियां डाली दामन नीचे पैरी जुती बड़गी देखो चीज कसुती यगज बड़ पानी ने चली 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 अमरानी हूर परी कुछ को न्याय इसके आगे केस जजी देख लिए आज भीड़ कुए पहला के अमरानी हूर परी कुछ को न्याय इसके आगे केस जजी देख लिए आज भीड़ कुए पहला के राम का मौसम बन गया समबाजी दिला में टोली दामन नीचे पैरी जुती बड़गी देखो चीज कसुती यगज बड़ पानी ने चली 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 पंजाबी सॉन्ग पर अगली परफॉर्मेंस देने आ रहे हैं जतिन एंड टीम। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द जतिन एंड टीम। Thank you.
very nice performance. Your Harshita, Yashika, and Rohini, please come on the stage for next performance on मैंने पायल है छनकाई. Music, STK. मैं दिन भर सोच में डूबूं, मेरा तुम जागो न सोऊं, तू ही मेरे सपनों में ओ सजना. मैंने पायल है छनकाई, अब तो आजा तू हर जाए. मैंने पायल है छनकाई, अब तो आजा तू हर जाए. मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना. जाना बरसा ओ सजना, आ जाना बरसा. आँख में गजरा, बाल में गजरा, बिंदिया जो लगाई रे. देख के मेरी मस्त जवानी चंदा भी शर्माए. मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, मेरी चूनर उड़ उड़ जाए. चले जब ये फरमाई, बजे दिल में शहनाई, तू ही मेरे सपनों का ओ सजना. मैंने छोड़ी है कनकाई, अब तो आजा तू हर जाए. मैंने छोड़ी है कनकाई, अब तो आजा तू हर जाए. मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना, आ जाना बरसा. स्कूल सिरपुर के मुख्याध्यापक श्री मदन लाल बरियान जी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो मंच पर आए और आज के मुख्य अतिथि श्री CL ठाकुर जी के सामने नव प्रभात पब्लिक स्कूल सिरपुर की एनुअल रिपोर्ट पेश करें. तो मात्र आपको सुन के हैरानी होगी, 7वीं कक्षा में थे जब इनके पिताजी का देहांत हो गया था. ये बात आपको वहां तक लेके जाएगी जहां हम आज के समय में अपनी बात रखूंगा. कह रहे वो बेचारा रह गया, अब सिरा बापा नहीं रहा, बेचारा रह गया, अब सिरा क्या होना. लेकिन आज आप देख सकते हैं कि इनकी एजुकेशन के नाम पर चंबा में नहीं पूरे हिमाचल में इनका नाम है. और भाई ने इतना स्ट्रगल किया. और वो दिन हमें याद है जब हम इकट्ठे भाई ट्यूशन पढ़ाते थे, और ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते जब इन्होंने स्कूल शुरू किया तो मेरी तरह ही एक अच्छा 10-20 बच्चे थे. लेकिन आज आप भद्रम जो जाना जाता है तो CL ठाकुर की इंस्टीट्यूशन के नाम पे, ITI में 400 बच्चा, वेटनरी में 200 बच्चा, स्कूल में 150 बच्चा. आप सोचो कि जब उस शख्स, उस बच्चे की हिम्मत देखो जो आज जिनके सिर से बाप का साया उठ गया था. लेकिन आज देखो इतने सारे बच्चे, 700-800 बच्चा एक जगह से निकलना, ये बहुत बड़ी बात है. तो मैं भाई का दिल की गहराई से धन्यवाद करूंगा जो इन्होंने हमारे इस स्कूल के लिए समय निकाला. और बहुत ऐसी बातें हैं, बहुत स्ट्रगल है इनका. आज जब भी एजुकेशन का नाम लिया जाता है तो पहले हिमाचल में चंबा में कौन सा इंस्टीट्यूशन है, हमारे जी CL ठाकुर का. और मुझे खुशी है इतने सारे बच्चे भाई ने ट्रेन किए हैं. कोई फीटर लगा है, कोई इलेक्ट्रीशियन लगा है, अब डॉक्टर तैयार कर दिए, और ड्राइंग मास्टर, PTI, इतने सारे जो है हमारे सारे बच्चे इनकी वजह से लगे हुए हैं. और खुशी की बात है हमें पंजाब जाना पड़ेगा, शिमला जाना पड़ेगा अगर जिन्होंने बच्चे पढ़ाने, लेकिन आज हमें वो सारी सुविधा चंबा में मिल रही है.
और इतना ही नहीं, इनका राजनीतिक करियर जो है उस कद को देख के भी लोग चाहे जो बोले, लेकिन वो कद भी इनका इतना है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करते जब इन्होंने बात करनी है। अब जैसे कुछ लोगों का मुझे सुनने को आया जी CL ठाकुर आ रहे हैं, एजुकेशन के नाम पे मुझे बता दो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट किसका है, और इनके जो दिल के जज्बे को सम्मान हम करते हैं, लेकिन ये सारा कुछ एजुकेशन की वजह से हुआ है। महोदय, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने भी आपकी तरह ही एक शुरुआत की थी 2010 में, छोटा सा स्कूल चलाने की, कि हम भी आगे करेंगे इसको, और धीरे धीरे करते करते अभी मुझे बड़ी खुशी से कहता हूँ मैं हर जगह कि मेरे नवप्रभात पब्लिक स्कूल सिडकुंड की जो एक लड़की है वो 3 स्टेट की टॉपर है, कोमल कुमारी, और अभी मैं अपने स्कूल को 2 डॉक्टर दे पाऊंगा, मुझे बहुत खुशी है। उसमें हमने एक चीज़ रखी है कि उनके जो फादर थे वो इतने पैसे वाले नहीं थे, लेकिन उनमें एक जज्बा था कि हमने बच्चों को पढ़ाना है, और जब बच्चा हमारा 3 स्टेटों में टॉपर करता है तो नाम तो चलता ही है कि नहीं। आज हमारी ये कोशिश है, और महोदय हम बहुत साल जो है वो किराए के भवन में रहे। अभी मैं आप सबके सामने धन्यवाद करना चाहूँगा अपने पूज्य अंकल देशराज जी का, जो इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और हमें स्कूल के लिए ज़मीन दी। कुछ लोगों का कहना है कि भाई पैसे दिए, पैसे की बात नहीं है, इनके दिल में जज्बा था। अभी आए थे कि मदन जी आपका ग्राउंड थोड़ा टेढ़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सीधा कर लो। ये भी दिल में एक बहुत बड़ी अपने दिल में हिम्मत होनी चाहिए डिवोट करने की। आज हम इस जगह पर हैं तो इनकी वजह से जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए, क्योंकि हमारा एक ही सपना है, आने वाले समय में हर जगह स्कूल है, इस स्कूल से ज़्यादा बच्चे जो है हम आगे यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में पहुँचें, और आने वाले समय में समाज के लिए हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो बहुत कुछ करें। अभी हमारा एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का ध्रुव बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक करवाना चाहता था, उनके मदर इधर ही है। एक बच्चे का नाम याद है हमें, एक बच्ची हमारी RBS में गई हुई है, बोले जी टॉपर चल रही है RBS में, भावना कुमारी, और बोधे हमारी इतनी फीस भी नहीं है, और सब अभिभावकों का मेरे साथ रहता है, क्योंकि हमारा मतलब है बच्चों को अपने पैर पे खड़ा करना। मैंने भाई की आपको स्टोरी क्यों बताई, छोटा सा इतिहास है, इसको बताएं तो बहुत बड़ा इतिहास है। मेरे ही गांव में जब वो समी कुमार फीटर निकला, और फीटर निकले कहाँ से पड़े, जी CL ठाकुर जी ने करवाई, ड्राइंग मास्टर कहाँ से निकले, तो एक जज्बा था। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को बढ़ चढ़ के आगे पढ़ने दें, जो हम नहीं कर सके वो हमारे बच्चे करेंगे, इसी आस को लेके हम आगे जाएंगे। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और बीच में भाई का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और हमारे बीच हमारे वार्ड मेंबर लड्डी के आए, इनके लिए भी जोरदार तालियां, हमारा बहुत सहयोग करते हैं। चंबा हलचल के से आए जोगिंदर भाई हमारे हर बार हमारा साथ देते हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। और जब कभी भी हमें जरूरत पड़ती है पानी के बिना कुछ नहीं होता, अशोक भाई और हमारे बड़े भाई जर्मो भाई हमारा साथ देते हैं, ये हमारे बीच है, इनके लिए भी जोरदार तालियां। अभी हमारे बीच पेरेंट्स जितने भी आए हैं सबका अच्छा कोऑपरेशन है। हमारे हेमराज जी, बंटू भाई पता नहीं कहाँ चले गए, सब लोग जो है हमारा साथ देते हैं। पवन भाई है, विक्की भाई, संजू भाई, जितने भी लोग आए हैं, और खासकर नवप्रभात पब्लिक स्कूल सिडकुंड का पूरे स्टाफ को मैं धन्यवाद देता हूं, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो इतने कम समय में 4 दिनों में आपने ये प्रोग्राम को तैयार किया, बहुत अच्छा है। और बहुत बढ़िया बात है कि बच्चे, मेरे को इतना लग नहीं रहा था कि स्टेज पे खड़े हो पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप सबका दोबारा हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आप इस प्रोग्राम में आए और हमारी शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन
जग सुना सुना लागे, कोई रहे न जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना। अब उत्तराखंड के कल्चर को लेकर आ रही है वेरी टैलेंटेड एंड चार्मिंग गर्ल आराध्या फ्रॉम क्लास 3rd, जो कि गुलाबी शरारा पर। आराध्या, प्लीज कम ऑन द स्टेज। झपकना भली झुली राती डोरों की सुट पकड़ा लटकना। हाँ, भली सिलाई भली कड़ाई खुट में प्यारा झपकना भली झुली राती डोरों की सुट पकड़ा लटकना। एक जोड़ी में खर्च तेरा 4,000, एक जोड़ी में खर्च तेरा 4,000। अरे चुनरी तेरी आय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, चमकनी गुलाबी शरारा। गुलाबी शरारा, गुलाबी शरारा। ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बटुमा, छम छमे पायल घुंघरू बजने तेरे खुटमा। ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बटुमा, छम छमा पायल घुंघरू बजने तेरे खुटमा। लाल प्यार कंगना तुम्हें चूड़ी छनहरा, लाल प्यार कंगना तुम्हें चूड़ी छनहरा। चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। नखरा एक जोड़ी सैंडल लियानू 2 जोड़ी सरारा। जब महीने की तनख्वाह लियानू तेरे बड़े नखरा, एक जोड़ी सैंडल लियानू 2 जोड़ी सरारा। मैं ढूंढनू घर में तू बाजार फरारा, मैं ढूंढनू घर में तू बाजार फरारा। चुनरी तेरी
चमकनी गुलाबी शरारा, चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। Up next, I would like to call Ananya and Avantika. Please come on the stage. चूड़ी जो खन्ने की हाथों में, हाय चूड़ी जो खन्ने की हाथों में, चूड़ी जो खन्ने की हाथों में, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में, चूड़ी जो खन्ने की हाथों में। ठंडी पवन चली तन मन में हाय आग लगी, ठंडी ठंडी पवन चली तन मन में हाय आग लगी, तेरे प्यार की चिंगारी अंग अंग में हाय मेरे जले, रिमझिम सी बरसातों में, हाय रिमझिम सी बरसातों में, रिमझिम सी बरसातों में, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में, चूड़ी जो खन्ने की हाथों में। इन नन्हे मुन्ने कलाकारों को देखकर हम सभी को कभी न कभी जब हम रो नहीं पाते, सुख से सो नहीं पाते, जब हम खो नहीं पाते, तब बचपन याद आता है। जब चिंता सताती है, हमारे तन को खाती है, जब भी मन नहीं मिलता, तब बचपन याद आता है। जब हम टूट जाते हैं, जब अपने रूठ जाते हैं, नम नप पाउंते पाउंदी भंगड़ा भी कुड़ी जट नु पटण दी मारी। जोरदार तालियों के साथ आराध्या एंड टीम का स्वागत करें जो बढ़ते चमेली ठाठ वाढे ओसनो, कारा जीपा दीनी कोई काटे ओसनो, चेत कट्टा पट्टू लेके आंदा शौक नाल, हार ले भी हैगा काल जी।
DJ Aman. अब हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे छोटे नर्सरी एलकेजी और यूकेजी के बच्चे फैंसी ड्रेस के लिए पर चमकते हैं जुगनू, आसमां पर चमकते हैं तारे, कुछ ऐसी ही छटा लेकर आ रहे हैं छोटे बच्चे हमारे। तो बच्चों के भाई हूँ, सबसे बड़ी सियानी हूँ। थैंक यू। My name is Dishanka Suryavanshi. I read in this class. I remain. Amen. एक बार जोरदार से तालियां निशान के लिए। My name is Nanchuan. I read in nursery class. I am a teacher. बच्चों को पढ़ाता हूँ। पढ़ाना मेरा काम है। Can't you have a nice day? My Kavya. I reading nursery class. I am doctor. मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं लड़कियों का इलाज करती हूँ। मैं एक इंजेक्शन भी लेती हूँ। Thank you, Avinash. My name is Kaviash. I read in LKG class. I am a policeman. मैं पुलिस वाला हूँ। मैं लोगों की मदद करता हूँ। मैं चोर अपराधियों को पकड़ता हूँ। Thank you, beautiful day. My name is Saira. I read in nursery class. I am a LKG class. I am a Indira Gandhi. राजनीति में कुछ भी सही और गलत नहीं होता। अगर कुछ गलत है तो होया जाना। Thank you, have a nice day. Very good. My name is Bhumi. I read in LKG class. I am a flower woman. मैं फूल वाली हूँ। मेरे पास तरह तरह के फूल हैं। मेरे फूल पूजा के काम आते हैं। Thank you, have a nice day. Afternoon to all. My name is Jatin. I read in LKG class. I am a Swachandana. तुम सुनो मैं तुम्हें
मालूम हो जाए। थैंक यू टू ऑल। My name is Kamal Kumari. I read in UKG class. I am a police woman. सब जनता की सेवा के लिए हम पुलिस है आपके साथ। जय हिंद। थैंक यू। I read in UKG class. I am a pilot. सभी अपनी कुर्सी की पट्टी बांध लो जी, हमारे साथ उड़ान भरने के लिए तैयार है। Hello to all. My name is Vantika. I read in UKG class. I am a teacher. School principal. Teacher class में नहीं पढ़ा तो से मैं 10 नोटिस मिल जाएगा। 3 नोटिस मिलने के बाद उसे सस्पेंड किया जाएगा। Thank you. Have a nice day. To all. My name is Ananya Malhotra. I read in UKG class. I am a Bharat Mata. मुकुट हिमालय, दिल में तिरंगा, आंचल में गंगा लाई हूँ। देखो स्वयं मैं भारत माता आई हूँ। Thank you. Have a nice day to all. My name is Yanshuri. I read in UKG class. I am a Sachanaru. सपने वो नहीं जो आप रात में देखते हैं। सपने वो है जो आपको सोने न दे। Thank you. Have a nice day. Very. मधुबन में जो कन्हैया किसी को पीस मिले, कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। मधुबन में भले कान्हा किसी को पीस मिले, उनमें तो राधा के ही प्रेम के फूल खिले। इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले, कि न सोचे समझे। इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले। अब नेक्स्ट आ रहे हैं 10वीं क्लास से कृष्ण। Krisha, please come on the stage. To all. I am Grisha. I did GST class. I am Rohit. मैं वकील हूँ, काला कोट पहनता हूँ, तो कुछ याद के लिए लेता हूँ, लोगों को याद के लिए लेता हूँ। Have a nice day. उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में। देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। तुमको मुझसे प्यार है, प्यार है, प्यार
program forward. Now, next, I would like to call our very beautiful, talented, and charming girls, Aradhya and Pallavi. Please come on the stage. आज के इस नवप्रभात पब्लिक स्कूल सिंकुंड के कार्यक्रम में मंच पर हमारे इस संस्था के ऊर्जावान और मेहनती अध्यक्ष भाई मदन लाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर बहन कुसुम जी और यहाँ के प्रधान वार्ड मेंबर अंकल देसराज जी, सभी छात्र छात्राओं के अभिभावक, बुजुर्ग, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने पर आपका हार्दिक धन्यवाद और अभिवादन करता हूँ। जैसे आप सभी जानते हैं कि ये जो स्कूल है, जिस तरह से संस्था के चेयरमैन जी ने मुझे बताया कि 2010 में हमने ये शुरू किया था और लगातार आज 14 साल इनको इस संस्था को शुरू किए हुए, और इस संस्था में जो इन्होंने अभूतपूर्व परिणाम इस क्षेत्र को दिए हुए हैं, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। जैसे इन्होंने बताया कि हमारी संस्था के द्वारा बहुत से छात्र छात्राएं आज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उच्च पदों पर पहुंचे हैं। तो मैं भाई मदन जी को और उनके सभी स्टाफ को हार्दिक बधाई देता हूं कि आपकी जो दिन रात की कड़ी मेहनत है, उस कड़ी मेहनत के द्वारा आपने ये संस्था दिन रात आप इसको आगे लेके जा रहे हैं, उसके लिए आप बहुत बहुत आपको बधाई। मैं आप सभी अभिभावकों को ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने देखा आपके बच्चों के प्रोग्राम यहाँ चल रहे थे, मैं बड़े ध्यान से देख रहा था आप सभी को कि आपके चेहरे में जो हंसी थी, और हर एक अभिभावक ये देख रहा था कि मेरा बच्चा जो है स्टेज पर किस समय आता है और वो क्या परफॉर्म करता है। तो ये कोई एक दिन का कार्य नहीं है, ये लगातार मेहनत है। ये लगातार जो मेहनत है वो केवल आपकी ही मेहनत नहीं है, इस स्कूल के प्रबंधन की भी मेहनत है। जिस मेहनत से आप सुबह अपने बच्चे को 7 बजे 8 बजे उठाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच तैयार करते हैं और स्कूल भेजते हैं, और स्कूल का जो प्रबंधन है वो इतना सुशील है, इतना कर्मठ है, जिस प्रकार से इन्होंने लगातार ये कोशिश रखी है कि आपका जो बच्चा आपने इस विद्यालय में भेजा हुआ है वो उसका सर्वांगीण विकास कैसे कर सके, कैसे उसके पूरा का पूरा जो हमारा संस्कार है और जो आज की नई शिक्षा पद्धति है, उस पद्धति को आपके बच्चे तक कैसे पहुंचाए और आपका बच्चा सर्वश्रेष्ठ कैसे बने, वो सारे के सारे इस प्रबंधन की और आपकी बीच की मेहनत होती है। तो मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं कि आप किस प्रकार से इस संस्था को सहयोग कर रहे हैं, और संस्था आपके बच्चों के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। सभी मैं देख रहा था, अभी पूरे के पूरी मैनेजमेंट आपकी युवा है और सभी इन्होंने प्रशिक्षित प्राध्यापक यहाँ पर रखे हुए हैं। मैं आप सभी को भी बधाई देता हूँ कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम जो इन स्कूल के सभी प्राध्यापक, अध्यापक और मैनेजमेंट और साथ में अभिभावकों को मैं बधाई देता हूँ कि इतना बढ़िया अरेंजमेंट और इतना अच्छा जो बच्चों के अंदर जो आपने कॉन्फिडेंस लेवल क्रिएट किया हुआ। देखिए 100% कोई भी नहीं होता है, कहीं पर भी नहीं होता है। हमारा बच्चा सही चलना चाहिए, उसका मार्गदर्शन सही होना चाहिए, भविष्य में उसे कहाँ तक जाना है, और उसको ले जाने के लिए केवल अध्यापक ही जिम्मेवार नहीं होता है। केवल स्कूल में आपका बच्चा 8 घंटे रहता है, 24 घंटे में से बाकी के 16 घंटा बच्चा आपके घर में रहता है। तो आपको भी ये देखना है अभिभावकों को कि इस 16 घंटे में हमारा बच्चा क्या करता है, क्या उसकी गतिविधियां हैं, क्या वो चाह रहा है, कैसे वो पढ़ाई कर रहा है, स्कूल में जो उसने काम किया उसको क्या हम घर में देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो ये सारी जो है हम अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बनती है। केवल हम स्कूल के ऊपर ये सब चीज़ें नहीं छोड़ सकते हैं,
कि स्कूल ने ही ये सारी चीज़ें करनी है। आज आप देख रहे हैं कंपटीशन का ज़माना है, और कंपटीशन के इस युग में हर एक माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, आगे जाए, और उसको आगे लेके जाने के लिए अब सबको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितना वो बच्चा कर रहा है, और जितनी वो मैनेजमेंट कर रही है, जितना स्कूल कर रहा है। तो मैं आप सबको एक बार फिर बधाई देता हूँ कि सिद्धकुंड जैसे जगह पर इस पंचायत में भाई मदन जी के प्रयासों से और इनकी मैनेजमेंट के द्वारा आपको ये वो सब सुविधाएं मिल रही है जो कि आधुनिक पब्लिक स्कूलों में पहले कहीं होती थी। आपको भी पता होगा कि यहाँ से चंबा के लिए आप पैदल जाते थे जो अभिभावक है, और आज आपके घर के पास सड़क है, स्वास्थ्य है, स्कूल है, शिक्षा है। लेकिन शिक्षा में भी आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी वो सब प्राप्त करे जो बच्चा शहर में जाके कर रहा है। तो आपको इसमें कंपैरिजन करना है, आपको देखना है कि शहर में भी वही टीचर है जो आपके स्कूल में है, शहर में भी वही सुविधाएं हैं जो आपके स्कूल में है। तो उन सब सुविधाओं को आप यहीं पर प्राप्त इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जब तक आप ये विश्वास नहीं जताएंगे संस्था के ऊपर कि जो शिक्षा शहर में दी जा रही है वही शिक्षा गांव में भी दी जा रही है। अब सबको मालूम है कि आज पूरे भारतवर्ष में एक ही शिक्षा प्रणाली है। जो सिलेबस हम बाजार में पढ़ते हैं, शहर में पढ़ते हैं, दिल्ली पढ़ते हैं, वही आज जो सिलेबस यहाँ सिद्धकुंड पब्लिक स्कूल में, नव भारत पब्लिक स्कूल में भी वही पढ़ाया जा रहा है। वही टीचर जो बीएड है, टेट क्वालिफाइड है, यहाँ पर भी रखे हैं, वहाँ उन स्कूलों में भी रखे होते हैं। फर्क सिर्फ हमारा क्या होता है कि हम गांव के लोग हैं, हमें दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, हमें लगता है कि वहाँ कुछ ज़्यादा अच्छा है, यहाँ कुछ नहीं है। तो नहीं होने का वजह क्या है? आज जैसे भाई मदन जी ने बोला कि हमारे यहाँ से 5-6 बच्चे जो गए हैं वो वहाँ पर टॉप कर रहे हैं, लेकिन क्या आप इस बात को समझ सकते हैं कि वो जो पेड़ लगाया था सबसे पहले वो कहाँ पे लगा था? ये एक वृक्ष की तरह है। जो छोटे बच्चे नन्हे नन्हे जैसे हम नर्सरी लगाते हैं, आप यहाँ सभी बगीचों के मालिक हैं, धनी लोग हैं, तो जैसे बगीचे में आपको एक पेड़ लगाते हैं और उस पेड़ को लगाते लगाते वो 5-6 साल के बाद फल देने लगता है। तो ये भी जो संस्था है नवप्रभात, ये भी ऐसी मेहनत कर रही है कि छोटे छोटे पेड़ लगा करके मतलब इन बच्चों को वहाँ तक पहुँचा रही है। जब वो बच्चा ठीक चलने लायक हो जाता है तो आप उस बच्चे को कहीं और जगह भेज देते हैं। तो मेरी बात को आप समझ रहे हैं कि जब उसका बेस बन जाता है, कहीं पर भी भेज दो तो वो चले गई, लेकिन कहीं पर भेजने से उसका क्या हो रहा है कि आपका जो धन का भी व्यय हो रहा है। एजुकेशन तो उतनी ही ऐसी ही होनी है, 10वीं का हिमाचल बोर्ड से होना, 12वीं का हिमाचल बोर्ड से होना, ये स्कूल भी मान्यता प्राप्त है। अभी स्कूल ने 10वीं तक ख्याति, ये 5वीं तक इन्होंने चलाया हुआ, और निकट भविष्य में आपको मैं एक और खुशखबरी देता हूं कि भाई मदन जी के और पूरी इनकी मैनेजमेंट के प्रयास से अब इन्होंने ये देखो आलीशान भवन बना लिया हुआ, और अब जो नया सत्र है वो 8वीं तक की क्लासें बिठाने का इन्होंने मुझे बताया अभी कि हम जो मार्च महीने में 8वीं तक की क्लास से यहीं पर बिठा देंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि जब आपका बच्चा 8वीं तक भी अब यहीं पर पढ़ेगा। ऐसे धीरे धीरे ये 10वीं हो जाएगा, 12वीं हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाहर जहाँ जहाँ हम जाते हैं वो खर्चे भी उतने बढ़ते हैं। गाड़ी में अगर हम बच्चा भेजते हैं तो 2000 रुपये का किराया, 2000 रुपये की फीस, जैसे इन्होंने बताया कि हम मिनिमम 500 रुपये से फीस पर स्टार्ट करते हैं। तो आज वो दिन दूर नहीं है जब गांव का बच्चा ही कहीं आगे जा रहा है, और गांव में इतना टैलेंट है हमारा छुपा हुआ, तो हम उस गांव में ही निखारने की इन्होंने कोशिश की है। आप देख रहे हैं इनकी उम्र को, अभी यंग लोग हैं, ये 30-32 साल के लोग हैं, और 32 साल की उम्र में इन्होंने नौकरी का ख्वाब छोड़ दिया। पढ़े लिखे हैं, प्रशिक्षित है, टेट क्वालिफाइड है, MSc BSc पास है, फिर भी आप लोगों के लिए इन्होंने अपना एक जज्बा लिया हुआ कि मैंने सिद्धकुंड की पब्लिक के लिए कुछ करना है। अगर सिद्धकुंड की पब्लिक के लिए कुछ करना है तो उन्होंने सबसे पहले एक प्राइमरी स्कूल शुरू किया कि जो हमारा प्राइमरी बेस नींव अगर पक्की हो जाती है तो हम इस क्षेत्र को और ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। ऐसे इनके प्रयासों की आप सबको सराहना करनी है और हम सब सराहना कर रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप इतने भारी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं और आपने अपने बच्चों को यहाँ डाला हुआ। तो एक विश्वास और बना के रखिए कि अगले साल आपका बच्चा यहाँ, जो बच्चे अब 5वीं से जा रहे हैं, अगले साल ही 8वीं हो जाएगा। और उसमें भी इन्होंने मुझे भी बताया कि और हमने स्टाफ की गुणवत्ता बढ़ानी है, स्टाफ भी हमने बढ़ाना है।
और स्कूल में कंप्यूटर लैब इन्होंने अभी एस्टेब्लिश कर दी है। तो नई चीज़ें जो शहर में हैं वो ये भी यहाँ करने की प्रयास में लगे हुए हैं। तो मैं आपको ज़्यादा तो इसके बारे में नहीं बताऊँगा, लेकिन पढ़ाई के लिहाज से मैं अभी प्रोग्राम देख रहा था। प्रोग्राम में आपके बच्चे जो जिस तरह से ये टैलेंट दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि मैंने बड़े कम स्कूलों में देखा है इस तरह का टैलेंट हो। पूरा का पूरा बच्चा कॉन्फिडेंस लेवल से यहाँ पर पहुँच रहा है। तो माँ बाप क्या चाहते हैं? पढ़ाई तो सब जगह होती है, माँ बाप को भी ये चाहिए, जो हमारे अभिभावक है, कि अगर आपको अपने बच्चे को और ज़्यादा निखारना चाहते हैं तो आपको भी उसके लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ बातें जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, तो हम पढ़ाई के टाइम पर अपने बच्चों से, जब आप बच्चा पढ़ने लगता है तो आप वहाँ पर अगर पेरेंट्स मोबाइल लेकर के बैठ जाएंगे, फ़ोन सुनेंगे या फ़ोन चलाएंगे, क्योंकि बच्चे जिस चीज़ को देखते हैं, जिस चीज़ को सुनते हैं, बच्चे वैसे ही आचरण करते हैं। जैसे अभी आपने डांस सिखाया, कई बच्चे नर्सरी LKG के इतने बढ़िया डांस कर रहे थे, उनको उन जो लफ्ज़ है, जो बड़े गाने, उनकी समझ नहीं है, लेकिन जैसे आपने उनको एक्ट करवाया वो एक्ट सीख गए कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। तो वही चीज़ है कि जो बच्चे हमारे 16 घंटे आपके पास रह रहे हैं, 8 घंटे आप स्कूल में भेजते हैं, संडे छुट्टी वाले दिन आपके पास होते हैं, बच्चा देखता है कि हमारे माता पिता क्या करते हैं और हमारा आस पड़ोस क्या करता है, तो बच्चा उसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जब आप अपने बच्चे को पढ़ाने बिठाते हैं, 2 घंटे आपकी बच्चे की कैपेसिटी, 3 घंटे 4 घंटे ट्यूशन भेजते हैं, तो सब जगह आपने उसको देखना है। आप अपने बच्चों को डेली खर्चा देते हैं 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये अपनी क्षमता के हिसाब से, लेकिन आप कभी दोबारा उसको चेक नहीं करते कि हमारा बच्चा वो 50 रुपये का खाएगा क्या। आपने तो लंच दिया होता है, आपने स्कूल के बच्चे को लंच दिया हुआ कि उसने लंच के टाइम पर लंच करना है, साथ में उसके जेब में आप 100, 50, 20 रुपये, 30 रुपये अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देते हैं। आपने ये भी जरूर जानना है कि वो 10, 20 रुपये का, 50 रुपये का हमारा बच्चा खा के क्या आ रहा है, कहाँ उस पैसे को लगा रहा है, क्या कोई गलत चीज़ें तो नहीं खा रहा है। जैसे आज आपने देखा है बहुत सारे जो यंग बच्चे हमारे वो नशे की चपेट में आ रहे हैं, और नशा जो हमारे लिए जहर है, हमारे आने वाली पीढ़ी को ख़त्म कर रहा है, और आने वाली पीढ़ी के लिए ही ये सब कुछ संजो रहे हैं। आप जो कुछ भी आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, चाहे मजदूरी कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं कि मेरा बेटा ये करेगा, मेरा बेटा ये करेगा। जब हमारा बच्चा, उसको हम चेक नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो गलत चीज़ों में, कुछ गलत लोग भी बाहर ऐसे लोग हैं जिनके वजह से हमारे बच्चे बुरी संगति में पड़ जाते हैं। और ख़ासकर आज की डेट में आप देख रहे हैं चंबा जिला में कि नशों का इतना प्रचलन चल रहा है, उसमें कई प्रकार के नशे आ गए हैं, मेडिकल नशे हैं, और उन नशों से हमने अपने बच्चों को बचाना है और सराउंडिंग में बचाना है। तो उसके लिए आपने सबने प्रयास करना है, अभिभावकों को खासकर ये प्रयास करना पड़ेगा कि स्कूल, मैंने आपको बता दिया, स्कूल के पास बच्चा सिर्फ 8 घंटे रहता है, बाकी का माहौल हर टाइम स्कूल जिम्मेवार नहीं रहेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम स्वयं भी स्कूल चलाते हैं, तो हम अभिभावकों से मीटिंग में, जो आपका SMC के प्रधान है, मैं आपको बधाई देता हूँ, आपने इतना बढ़िया इस SMC को चलाया हुआ, और SMC के सभी जो यहाँ पर मेंबर हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने इस क्षेत्र में ऐसी SMC बनाई है ताकि स्कूल का कोई भी अभिभावक, बच्चा या स्टाफ, उन पर आपने एक निगरानी का ये पूरा फार्मूला बनाया हुआ, ताकि अध्यापक भी पढ़ा रहा है उसको चेक काउंट कर रहा है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे स्कूल में कि आपने जो SMC का जो ये प्रधान है, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा क्योंकि और भी आपके प्रोग्राम हैं बच्चों के। मैं बस आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए, जैसे भाई मदन जी बता रहे थे हमारे बारे में, तो कुछ भी असंभव नहीं है दुनिया में, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। आप जब अपने बच्चे के अंदर भी यही कॉन्फिडेंस क्रिएट करेंगे, अभी मैं देख रहा था यहाँ कुछ बच्चे, 1-2 नर्सरी के बच्चे, एक बच्चा रो रहा था पहले, और उसके मम्मी यहाँ खड़े थे और वो बार बार देख रहे थे कि मेरा बच्चा कुछ कर नहीं रहा है। जैसे यहाँ और बच्चे करने लगे तो उस देखने से वो भी करने लग गया। तो कहीं ना कहीं जैसे ये क्या रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। और बात वही आ रही थी कि वो बीच में कह रहा था कि मम्मा मुझे ये चीज़ चाहिए, तो चीज़ें वही दो। अगर बच्चे की शर्त है तो आप भी अपनी शर्तों पर आ जाओ कि बेटा अगर ये काम करोगे, इतनी पढ़ाई करोगे, तो हम आपको वो चीज़ें जरूर प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि अगर आप बच्चों की सुन के चलेंगे तो कल को बच्चे आपकी नहीं सुनेंगे। अगर आज आप अपने साथ जब इन बच्चों को बताएंगे बेटा ये तुम्हारे दादाजी, ये तुम्हारी दादी जी, ये तुम्हारे पापा, ये तुम्हारे ताया, ये ताई, ये संस्कार
हम और आप ये अपने बच्चों को दे सकते हैं। जब आप इन संस्कारों से उनको बांध के रखेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपके बच्चे को किसी भी जगह पर पहुंचने से रोक सकता है। जब हम संस्कारों से भटक जाएंगे, हम अपने बच्चों के सामने ही अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को धिक्कारते हैं, उनको वही करके बोलते हैं, उनको खाना नहीं देते हैं, उनको दूर करते हैं, तो बच्चा भी वही सीखता है। वो आज से ही हमारे साथ करना लग जाता है, क्योंकि तो कलयुग का प्रभाव है। कलयुग कोई दूर थोड़ी नहीं, कलयुग बहुत नजदीक है। पहले हम सुनते थे कि उस जमाने में ऐसा था, उस युग में ऐसा था, 500 साल 700 साल लग जाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं, आज आप सुबह करते हैं, शाम को बच्चा आपके साथ वैसे करेगा। तो इसलिए बच्चों के अंदर जो संस्कार है वो भी आपने ऐसे डालने हैं, ताकि आप जो आज अपने माता पिता के साथ करेंगे वही बच्चे कल हमारे साथ अपने बच्चे भी करेंगे। तो बच्चों की संस्कार की बात जो स्कूल से भी शुरू होती है और अभिभावकों के घर तक जाती है। बाकी अभिभावक ज़्यादा से ज़्यादा जब किसी संस्था में आपका बच्चा पढ़ता है, हमें विश्वास करना पड़ता है। कोई भी काम है, जैसे भाई का बहन पर, पति का पत्नी पर, माँ का बेटे पर, ये धरती एक विश्वास पर ही टिकी हुई है। जिस दिन ये विश्वास खत्म हो जाएगा कुछ नहीं होगा। जब हम किसी संस्था में अपना बच्चा डालते हैं तो कमियां सब जगह होती है। स्कूल भी 100% नहीं होता है, माँ बाप भी 100% नहीं होते, बच्चा भी हमारा 100% नहीं होता है। तो उन कमियों को हम जब मिलजुल करके दूर करते हैं और कहीं एक अच्छी संस्था की आप शुरुआत करते हैं कि चलो इस जगह पर 4-5 पंचायतों का ये सिद्धकुंड केंद्र है, और इस केंद्र में अगर इस तरह की कोई संस्था जो दिन रात आपके लिए काम कर रही है, अगर वो काम करती तो आपको बहुत खुशी होनी चाहिए इसके लिए, और आप सभी इसके लिए एक बार फिर से बधाई के पात्र हैं। अंत में मैं एक बार फिर से आप सभी अभिभावकों का, एसएमसी का और खासकर स्कूल के प्रबंधन कमेटी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने मेरे गर्मजोशी से इतना स्वागत भी किया और मुझे यहाँ पर आने का अवसर भी प्रदान किया। मेरे लायक जब भी कोई कार्य होगा इस संस्था के प्रति या यहाँ के जो अभिभावक हैं उनके प्रति, तो मैं हमेशा आपके लिए तन मन धन से खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। Very beautiful performance. Headmaster, our chief guest, our school teaching as well as non-teaching staff and all parents and dear students. First of all, I would like to welcome you all. Now I am going to read the annual report of our North Prabhat Public School, Siddhkund. The establishment of this school had been on 7 April 2010. This school is in process due to
Quality Education Society, Sirkund. And in this school, the pre-primary to primary classes education has been providing since 2010 academic session 2010. We have enrolled the most admission in nursery this year. 2 houses have been built in the school. First house name is Bhagat Singh House and the second house is Kalpana Chawla House. Every year, house competition are made among these houses. Competition are like dance competition, games, music, speech and quiz competition and other co-curricular activities. Students participated with a good sense of interest in every format of competition. Our school has introduced a new part of quiz competition in the form of week test. This form of test helped us to evaluate the sense of comprehension among our students. Peace, love and intelligence is the most primitive aim of our school. There are different classrooms for each and every class in our school. We are going to convert our primary school into elementary school next year. Computer education is also available and students are taught through audio-visual aids by means of computer. Musical as well as cultural programs are also organized with the demand of time. We celebrated the Environment Day on 5th June this year, in which the students were given all the important information about the hazard of cutting woods and benefits of planting a tree. There are well intellectual teachers who have got training from different training institutions. All teachers are TET and CTET qualified. Our school is trying to give best product, and to achieve this motive several minor major school activities have been done, by which the sense of self-confidence is increased in the students. 15th August was also celebrated. On this day, speech competition, group song, quiz competition, fancy dress competition, all these competitions were organized in our school. 14th November was also celebrated. On this day, speech competition, group song, dance and quiz competition, all these competitions were organized in our school. 15th September was also celebrated. Last of all, I would like to thank our school respected headmaster Mr. Madan Lal Baryan, who provided a stirring opportunity for me to address this beautiful gathering. Jatin and party, please come on the stage for skit. तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे नन्हे मुन्ने कलाकारों का। साथियों से तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूं मैं, बादशाह। इस नाचीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। चलो देखो। क्या पागलपन है ये बेटा, दिन भर मोबाइल पर लगी रहती है।
दिन भर चैटिंग चैटिंग, बस चैटिंग, दिमाग खराब कर दिया है। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ मामा, आप क्या जानो, ये कमरे में बैठे बैठे आदमी पूरे दुनिया से मिल सकता है, बात कर सकता है। ये मोबाइल नहीं है, दुनिया की खिड़की है। तुम हाथ धो के मेरी बेटी के पीछे पड़ी हुई हो। नए जमाने की लड़की है, वो कुछ गलत नहीं करेगी। तुम चिंता मत करो, वो मेरी बेटी है, मेरी। ठीक है, आप लोगों से तो भगवान भी नहीं जीत सकता। थैंक यू पापा, यू आर सो स्वीट। मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे होंगे। ओह गॉड, मेरी आईडी किसने हैक कर ली? मेरा तो फ्यूचर ही बर्बाद कर दिया। क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना है। नादान लड़की, मेरे जाल में तुम पूरी तरह फंस चुकी हो। भगवान का नाम मत लो। जहां मैं होता हूं वहां भगवान नहीं हो सकता। तुम कौन हो? मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं मामा, चूहा था। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। चलो सो जाओ। सिर्फ विनती करती हूँ, मुझे परेशान मत करो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। मुझे गलतियों से प्यार है। मैं इंतजार करता हूं कि कोई गलतियां करे, और जब कोई गलती करता है तो मैं उसे माफ नहीं करता। वो मेरे जाल में फंस चुका होता है, फिर धीरे धीरे मेरे बस में आ चला जाता है, और फिर उसकी जिंदगी तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मेरे पापा को तुम पहचानते नहीं हो, वो तुम्हें जेल भेज देंगे, सड़ोगे तुम जेल में। जेल और मैं? बेवकूफ लड़की, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। योर लाइफ इज ओवर। जो हो रहा है वो तुमने किया है, तुम खुद ही जिम्मेदार हो इसके लिए। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? खड़ी खड़ी क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड्स होंगे, पर तुम्हारा एक भी फ्रेंड तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकता। We are शक्तिमान। देखा, ये सब मोबाइल की वजह से ही हुआ है। मैं तो हमेशा से ही बोलती थी, आप ही इसे बस मॉडर्न लड़की बोलते रहते थे। कुछ भी मत बोलो तुम, मोबाइल की वजह से थोड़ी ना कुछ होता है। इसने कहा कि मोबाइल से कुछ नहीं होता। आजकल बहुत बच्चे शिकार बन चुके हैं। इन्होंने कहा था डॉक्टर, अदिति पूरे दिन एक जगह पे पड़ी रहती थी और मोबाइल में ही लगी रहती है। देखिए, घबराने या चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से आपकी बच्चे की ऐसी स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की जरूरत है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। हेलो अंकल, कैसी है अदिति? क्या हुआ है उसे? हमें नहीं पता उसे क्या हुआ है। रात रात को चिल्लाती रहती है। डॉक्टर्स कह रहे थे कि ज्यादा फोन यूज करने की वजह से ये सब हो रहा है। अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं उसे एक जगह ले जाऊंगा। ठीक है बेटा, ले जाओ उसे। क्या पता तुम्हारे साथ जाके उसको अच्छा लगे। आपकी अदिति पहले जैसी हंसती हुई अदिति हो जाएगी।
क्या हुआ आदिति? मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, किसी चीज में मन ही नहीं लगता है, डरावने सपने आते हैं। प्लीज मेरी हेल्प करो, कोई फ्रेंड्स ही नहीं है लाइफ में, एकदम अकेला अकेला लगता है। क्यों आदिति, तेरे तो इतने सारे फ्रेंड्स हैं, फेसबुक पे इतने सारे फोटोज डालती रहती है, सोशल मीडिया पे तो तेरा इतना अच्छा ग्रुप है। उनमें से कोई भी अपना नहीं लगता, सब मतलबी है। देख तू जल्दी से ठीक हो जा, डोंट वरी, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। थैंक यू। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमारे नन्हे मुन्ने कलाकारों ने स्किट के माध्यम से बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश देने की कोशिश की है। सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इत्यादि का यदि हम हद से ज्यादा या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते ये भी न जाने वो भी न जाने, नैनों के रंग नैना जाने, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग, जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी कोई दीवाने, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग, मैं छोड़ा ही घर बार मेरा मखना रे मखना, तू ही है संसार मेरा मखना रे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा मखना रे मखना, मैं छोड़ा ही घर बार मेरा ओ मखना। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है, मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है, ढोंगी साइड बड़ा ढीठ है, वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल फूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है, शगन तेरी के लगन तेरी के हमने कर दी तैयारी है, नच देने सारे मिल के आज हिले दिल के ये सारे सारे सारे, नच देने सारे मिल के आज हिले दिल के ये सारे सारे सारे। मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा वाले, चले रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले, मन कहे कि मैं ले आऊं चादर तेरे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई, हेलो हेलो तू मुझ है तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई, डीजे अमन Ladies and gentlemen, now the time has come for much awaited moment, prize distribution ceremony. I believe that you all are super excited to your winners and respected winners. So I would like to humbly request today's chief guest, Mr. C.L. Thakur, and the head teacher of our head teacher and MD. All the पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा। बहुत
ऑस्कर बरियान। मैम जी सामने देखना आपने। आरव बरियान, नर्सरी क्लास, प्लीज। क्लास, प्लीज रिसीव योर अवार्ड। भूमिका, कम ऑन दिस। ठीक है सर। उधर जाना, उधर अंदर आ जाओ। सर सामने। ठीक है सर। सामने देखना। ठीक है सर। सामने बैठा है। चलो सामने बैठा, ठीक है। चलो जतिन, प्रिंस कुमार, From UKG class, please receive your award. UKG class, please receive your award. देखना ना, बड़ा सामने। Haranam from सामने देखना ना। कृपया करके अपना अवार्ड प्राप्त करें। please come on the stage and receive your award. मैम सामने देखना। सामने। Krish from class 3rd, please receive your award. Next, Miyank from class 3rd. Sabi. Arav Kumar from class 3rd. Rohini from class 4th, please receive your award. Harshita from class 4th, please receive. सर सामने। Yashka from class 3rd, receive your award. सामने देखना ना। सर सामने। ठीक है सर। Receive your award. सामने देखना। सर सामने। Next, I would like to request Nisha ma'am, please come. श्रीमती बीना देवी जी मंच पर आए। चुके हैं और अब गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिलाघाट में एज अ डीएम ये काम का कृपा करके मंच पर आए और अपना अवार्ड प्राप्त करें। श्री हेमराज जी वो अपना अवार्ड प्राप्त करें। लाइट बंद की ना। स्टेज पर आए और अपना अवार्ड प्राप्त करें। श्री पवन जी एक बार इनके लिए जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। सर सामने देखना। मैं श्री अमन जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो स्टेज पर सर सामने देखना ना। चलो चलो
thanks our head teacher for his expert and able guidance. It is needless to say that today's program would not have been such a grand success without continuous supervision and monitoring of him. So at last I would like to call our headmaster, please come on the stage and say few words to the children. Madan Baryan, please come on the stage. चाहूँगा कि वो हमारे स्कूल के मुख्य अध्यापक श्री मदन लाल बरियान जी को अवार्ड देकर सम्मानित करें। नवप्रभात पब्लिक स्कूल सिडकुंड के एनुअल फंक्शन में भाई सीएल ठाकुर जी, हमारे लड्डी वार्ड के मेंबर राकेश ठाकुर जी, हमारे अंकल देशराज जी, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से साहिल जी, हेम जी और एसएमसी के प्रधान नगिता सूरी, ज्योति जी, बीना जी, पवन जी, सालू जी और बहुत से जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना हमारा साथ दिया। मुझे एक बड़े दुख की बात है कि मेरे गुरुजी रुमाल सिंह जी नहीं आए। उनको मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी, शायरा की मम्मी देख रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं आए। तो मैं चाहता हूँ अगले बार इससे भी अच्छा हम प्रोग्राम करें, बच्चों का साथ दें। और हमारे भाई सीएल ठाकुर जी ने बोल दिया है कि 8वीं की क्लास से बैठेगी तो बैठ जाएगी। जोरदार तालियां इनके लिए, इन्होंने इतना कीमती समय निकाला। और अभी आपके लिए लंच का प्रबंध किया गया है, तो आप कृपया ऊपर लंच करिए ऊपरी छत में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतना हमारा सहयोग दिया, साथ दिया। धन्यवाद। लाया गति